आज का टॉपिक है होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। अब हम लोग दो इक्वेशंस देखेंगे। एक है एक्स स्क्वायर प्लस 7xy माइनस 5y स्क्वायर इक्वल टू 0। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y क्यूब इक्वल टू 0। अब इन फर्स्ट इक्वेशन x और y दोनों के इंडेक्स का एडिशन। अब पहले टर्म में x का पावर है 2, y की टर्म में ये तो y का पावर हो गया 0, सम ऑफ इंडेक्सेस हो गए 2 + 0 दैट इज 2। सेकंड इक्वेशन सेकंड टर्म x का इंडेक्स है 1, y का इंडेक्स है 1, सम ऑफ इंडेक्सेस 2। थर्ड टर्म है x का इंडेक्स 0 है, x के टर्म में ये है x का पावर 0, y का इंडेक्स है 2, सम ऑफ इंडेक्सेस 2। In first equation, sum of indices of x and y in each term is same. Same as the homogeneous equation. Sum of indices is 2 and the power of second degree. X equation x or y में, so we write here in x and y. So this is homogeneous equation of second degree in x and y. Third example, second example में x का power है 3, y का power है 0. Sum of indices 3. सेकेंड टर्म x का इंडेक्स है 2, y का इंडेक्स है 1, सम ऑफ इंडेक्सेस 3। थर्ड टर्म x का इंडेक्स 0, x के टर्म में x का पावर 0, y का पावर है 3, सम ऑफ इंडेक्सेस सम ऑफ पावर्स 3 है। ये हो गया होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ थर्ड डिग्री इन x एंड y। तब तक ये नहीं बना। दिस इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x एंड y। सो इक्वेशन इन व्हिच द सम ऑफ इंडेक्सेस ऑफ x एंड y इन ईच टर्म इज सेम and is equal to 2 is called as homogeneous equation of second degree in x and y. अब निकालना है joint equation of pair of lines passing through origin. Joint equation of pair of lines passing through origin. Joint equation of a pair of lines passing through origin. Now the equation of line passing through origin is y equal to mx. Equation contains x term, y term. And equation लिखेंगे हम लोग ax plus by equal to 0. इक्वेशन में x की टर्म है, y की टर्म है, कांस्टेंट टर्म नहीं है। सो दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऐसे दो लाइंस होना। सो कंसीडर द लाइंस a1x प्लस b1y इक्वल टू 0। सेकंड लाइन लेंगे a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। दीज आर द टू लाइंस, पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इनका जॉइंट इक्वेशन है u इंटू v इक्वल टू 0। यानी इनका जॉइंट इक्वेशन हो गया a1x प्लस b1y इंटू a2x प्लस b2y इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करना है a1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a1 b2 xy प्लस b1 a2 xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे xy कॉमन, तो फर्स्ट टर्म a1 a2 x स्क्वायर प्लस a1 b2 प्लस b1 a2 इंटू xy, a1 b2 प्लस b1 a2 इंटू xy प्लस b1 b2 y स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ पे a1 a2 इक्वल टू लिखना है a, b1 b2 इक्वल टू b,
और a1 b2 प्लस b1 a2 वी राइट ट्वाइस h, ये इक्वेशन होगा ax स्क्वायर प्लस 2hxy plus by square equal to 0, and this is homogeneous equation of second degree in x and y. A joint equation of pair of lines passing through origin is a homogeneous equation of second degree in x and y. तो इसका कन्वर्सन एक थ्योरम है कि this equation represents two lines passing through origin if condition है h square minus ab greater than or equal to 0, greater than or equal to 0, h square minus ab h greater than or equal to 0. तो इसका प्रूफ देखते हैं अपन. theorem है कि prove that the homogeneous equation of second degree in x and y, that is ax square plus 2hxy plus by square equal to 0, represents two lines passing through origin if h square minus ab greater than or equal to 0. तो homogeneous equation है ax square plus 2hxy plus by square equal to 0. So equation number 1. Now consider two cases, b equal to 0, second case b not equal to 0. Write case number 1. Let when b equal to 0. यदि b equal to 0 है तो इक्वेशन में थर्ड टर्म हो गई 0. इक्वेशन becomes ax square plus 2hxy equal to 0. Equation 1 becomes ax square plus 2hxy equal to 0. x कॉमन, ब्रैकेट में ax plus twice hy equal to 0. जॉइंट इक्वेशन है uv equal to 0. इसके दो सेपरेट लाइंस u equal to 0 and v equal to 0. ये इक्वेशन के दो सेपरेट लाइंस हो गए x equal to 0 and second line है ax plus twice hy equal to 0. Both the lines are passing through origin. Linear equation है x और y में constant term नहीं है. The line is passing through origin. X equal to 0 equation of y-axis passes through origin. That means both the lines passes through origin. Second case, when b not equal to 0. अगर सेकंड केस में इक्वेशन 1 को b से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय b, सो राइट b y स्क्वायर इनटू b यानी b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ट्वाइस h b x y प्लस a b x स्क्वायर equal to 0. When b not equal to 0, multiply each term by b. इक्वेशन 1 में हर एक टर्म को b से मल्टीप्लाई करना है. b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ट्वाइस h इंटू b एक्स वाई प्लस a b x स्क्वायर इक्वल टू 0. ये हो गया b स्क्वायर x स्क्वायर b स्क्वायर y स्क्वायर प्लस ट्वाइस b ट्वाइस h b x y प्लस यहाँ पे ऐड करना है थर्ड टर्म. थर्ड टर्म का फॉर्मूला है मिडल टर्म होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म. मिडल टर्म है ट्वाइस एच बी एक्स वाई, इसका स्क्वायर 4 एच स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, मिडल टर्म का स्क्वायर. डिनोमिनेटर है 4 इंटू फर्स्ट टर्म 4 इंटू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे 4 कैंसल, बी स्क्वायर कैंसल, वाई स्क्वायर कैंसल, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया थर्ड टर्म. ये टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0. क्योंकि फर्स्ट 3 टर्म्स और ये लास्ट 2 टर्म्स. फर्स्ट 3 टर्म्स ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर यानी बी वाई स्क्वायर रूट, मिडल टर्म के साइन प्लस एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर रूट एच एक्स होल स्क्वायर, यहाँ पर माइनस ए बी वाई स्क्वायर की जगह ए बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन इन ब्रैकेट एच स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू 0.
सेकंड टर्म को स्क्वायर में लिखेंगे. फर्स्ट टर्म एज इट इज है by प्लस hx होल स्क्वायर माइनस योगा स्क्वायर है x इंटू अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab होल स्क्वायर इक्वल टू 0. Apply the formula p square minus q square. Factors p plus q, p minus q. So first bracket by plus hx plus x under root of h square minus ab into second bracket आएगा by plus hx minus x under root of h square minus ab equal to 0. यहाँ पर x कॉमन by प्लस ब्रैकेट में आएगा h प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab इंटू x इंटू सेकेंड ब्रैकेट by plus h minus under root of h square minus ab into x equal to 0. This is u into v equal to 0 and the separate lines are by plus h plus under root of h square minus ab into x equal to 0. And second equation है by plus h minus under root of h square minus ab into x equal to 0. दोनों लीनियर इक्वेशंस है x और y में and upper both the lines passes through origin. सिर्फ कंडीशन है कि रूट के अंदर के टर्म पॉजिटिव या इक्वल टू 0 भी चलता है. That is condition is h square minus ab greater than or equal to 0. So given equation is equation number 1 represents two lines passing through origin if h square minus ab greater than or equal to 0. इसमें केसेस लेंगे. नोट पहली कंडीशन है कि if h square minus ab greater than 0 then two lines represented by equation 1 are distinct. Distinct है separate lines. Second condition है if h square minus ab equal to 0. H square minus ab equal to 0. Then first equation becomes by plus h plus 0 into x then hx equal to 0. Second equation by plus h minus 0 into x and again hx equal to 0. दोनों इक्वेशंस सेम है and both the lines are coincident. Two lines are coincident. Third number, if h square minus ab less than 0 है ना नेगेटिव वैल्यू, रूट के अंदर यदि नेगेटिव वैल्यू आते हैं तो गिवन इक्वेशन विल नॉट रिप्रेजेंट टू लाइंस. The lines are imaginary. Two lines are imaginary. You get conditions. Now the slope of two lines represented by equation 1. Slope का फॉर्मूला है minus a by b. Minus a by b यानी x का कोएफिशिएंट b यानी y का कोएफिशिएंट यहाँ पे b. फोर्थ नंबर let m1 and m2 be the slope of two lines represented by equation 1. Equation 1 के दोनों लाइन के स्लोप्स m1 और सेकंड लाइन का m2. m1 इक्वल टू फॉर्मूला माइनस ऑफ x का कोएफिशिएंट है h प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b एंड m2 स्लोप ऑफ सेकंड लाइन फॉर्मूला माइनस coefficient of x h minus under root of h square minus ab upon b. अब निकालें अपने को sum of the slopes m1 plus m2.
सम ऑफ द स्लोप्स ये हो गया माइनस, ब्रैकेट ऑफ कर लेते हैं, माइनस एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी प्लस न्यूमरेटर में माइनस एच माइनस माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। यहाँ पर एलसीएम में बी, न्यूमरेटर माइनस एच माइनस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी माइनस एच प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर माइनस ए बी। ये टर्म कैंसल, तो ये होगा माइनस ऑफ ट्वाइस एच बाय बी, ये होगा सम ऑफ द स्लोप्स का फॉर्मूला। सम ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन 1, यानी दोनों इक्वेशंस। अब निकालना है प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स मींस m1 into m2। m1 की वैल्यू है माइनस ऑफ h प्लस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू माइनस ऑफ h माइनस अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी। माइनस इंटू माइनस होगा प्लस, न्यूमरेटर में फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एच स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू बी, बी स्क्वायर। ब्रैकेट ऑफ किया तो एच स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर कैंसल, माइनस माइनस ए बी माइनस माइनस प्लस, यानी ए बी अपॉन बी स्क्वायर, दैट इज ए अपॉन बी, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स। अब निकालना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन in M whose roots are m1 and m2. Quadratic equation in M whose roots are m1 and m2 is m square, formula m square minus of m1 plus m2 into m plus m1 m2 equal to 0. m1 plus m2 की वैल्यू थी माइनस ट्वाइस एच बाई बी, m square minus 2h by b plus m1 m into m plus m1 m2 a by b equal to 0 multiply by b, क्योंकि bm square plus twice hm plus a equal to 0। इसको इक्वेशन नंबर देंगे 2। This equation is called as auxiliary equation of equation 1. Equation 1 is ax square plus twice hxy plus by square equal to 0. इसको 1 नंबर दिया था। ये इक्वेशन का auxiliary equation है bm square plus twice hm plus a equal to 0. Auxiliary equation is a quadratic equation in M whose roots are m1 and m2. ये इक्वेशन के roots, the roots of auxiliary equation are the slopes of two lines represented by equation 1। ये equation 1 था। equation 1 के दोनों लाइन के slopes यानी auxiliary equation के रहते हैं roots। The slope of two lines represented by equation 1 are the roots of auxiliary equation। The roots of auxiliary equation are the slope of two lines represented by equation 1। इसके आगे के टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में।